और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर नट्टू भाई है, वो आगे आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना કરીશું આપણે। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। આપણી આંખો બંધ કરીશું। પ્રેઝ ધ લોર્ડ। ધન્યવાદ ઈશુ પ્રભુ, તમારા પવિત્ર નામને ધન્યવાદ કરતા ફરી એકવાર પ્રભુ મેં તમારી પાસે નમેલા છે। અદ્ભુત હા સમય પ્રભુ તમે અમને આપવામાં આવ્યો છે। સમયને માટે પ્રભુ તારા નામને ધન્યવાદ। પ્રભુ આ યુથ સેમિનાર ગઈકાલથી અત્યાર સુધી પ્રભુ તમે તેને ચલાવ્યો છે। તમારા સેવકો દ્વારા અદ્ભુત તમે ઉપયોગ કર્યો છે। પ્રભુ તારા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ। પ્રભુ એક ભાવિ પેઢી આવનાર દિવસોની અંદર એ બાળકો સેવકો અને પ્રભુ એક તારી સેવાને માટે મંડળીને સંચાલન કરવાની અંદર પ્રભુ તો પ્રભુ આ એક યુવા પેઢી છે જે આગળ વધવાની છે, એ કાર્ય કરવાની છે। એને અમે તમારા હાથોની અંદર સમર્પિત કરીએ છીએ। તમે તેમને પુષ્કળ આશીષ કરજો। અને પછી તો પ્રભુ જે પણ વચનો અહીંયા આગળ શીખી રહ્યા છે એ વચનો અનુસાર હોય તો પ્રભુ તેઓ જીવન જીવે, તારા ભયમાં બીકમાં જીવન જીવતા આગળ વધતા જાય એવું પ્રભુ તમે થવા દેજો। અમારી પ્રાર્થના છે આ સમયે અમે બધા તમારા હાથોની અંદર અમે સોંપાઈ જઈએ છીએ। પ્રભુ તમારા સેવકોને અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ। તમે તેમને આશીષ કરો અને પછી તો પ્રભુ બિશપ સાહેબને અને તેમને પણ ભાષાંતર કરવાની અંદર બેનજુને અને બધાને પ્રભુ અમે તમારા હાથોમાં સોંપી દઈએ છીએ। જે પણ વચનો અહીંથી પ્રગટ કરવામાં આવશે એ તમામ જે વચનો છે એ દરેકના જીવનને માટે આશીર્વાદરૂપ નીવડે એવું પ્રભુ તમે થવા દેજો। આ પવિત્ર પ્રભુ આ 3 દિવસનો જે પણ આ સેમિનાર છે અને એ એક એની અંદર તેઓ શીખી રહ્યા છે, એ શીખવાને માટે તેમને મન આપ્યું છે, ત્યાં આગળ હાજર છે। ત્યારે તારા ભયમાં બીકમાં તો હંમેશા પ્રભુ તારું વચન ગ્રહણ કરનારા બને, શીખનારા બને એવું પ્રભુ તમે થવા દો। આ વખતે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ તારું રાજ્યનો વિસ્તાર વધે એના માટે આ એક યુવા પેઢી છે, એને પ્રભુ વધારે ને વધારે તેઓ વૃદ્ધિ પામતા આગળ વધતા જાય એના માટે પણ અમારી પ્રાર્થના અને વિનંતી છે। આ વખતે સુંદર આરાધના કરવામાં આવી છે। એ આરાધના દ્વારા પ્રભુ તને માન અને મહિમા આપી ચૂક્યા છે। હવે પવિત્ર પ્રભુ જુવાનોનો તમે અદ્ભુત ઉપયોગ કરો છો એના માટે તારા નામને માટે અમે ધન્યવાદ જ કરીએ છીએ। હવે પછીના કાર્યમાં પ્રભુ તમે અમારી સાથે રહેજો। જેવો વચનની આ સેવકો છે એમને હું તમારા હાથોમાં સમર્પિત કરું છું કે યોગ્ય જે પણ વચનો અત્યારે અમારી મધ્ય લાવવાના છે એનો આશીર્વાદ પ્રભુ પ્રત્યેકને આપજો। અને તમારા સેવકોને તમારા હાથોમાં સમર્પિત કરતા અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુના પવિત્ર નામમાં માંગીએ છીએ। આમેન। जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन कहां पर है? सामर्थ्य में है। हालेलुया। जवानों के सशक्तिकरण, हमारे जो अंदर जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है वो सामर्थ्य बड़ी है। हालेलुया। और उसी सामर्थ्य में जब हम चलते हैं परमेश्वर अद्भुत बड़े बड़े काम करता है, कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन वो सामर्थ्य में है। हालेलुया। और वो वचन है, वचन दोधारी तलवार है। और वही वचन जब हमारे हृदय तक, हमारे जीवन तक आता है, हमारा बोलना, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारा जीवन क्या होता है? बदलता जाता है। हालेलुया। और वह बदलता बदलता परमेश्वर की महिमा में वह बढ़ता जाता है। वो परमेश्वर महान है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर का दास रजनीश जैकब सर आगे आएंगे, उनको तालियों से स्वागत करेंगे, जोर से, जोर से। हालेलुया। थैंक यू भाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से हाथ में कहिए कि मैं आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब पता नहीं क्यों ये जो वर्ड है अंग्रेजी का एक्साइटेड, जब भी कुछ बात मैं करता हूं हमारे यहाँ पे यूथ को अपने कलीसिया में, तो जैसे उनको मैंने कुछ प्रेजेंटेशन दिए कि हम लोग जो है इस प्लान को इस तरह से करने जा रहे हैं और उसमें जो है 2 घंटे का म्यूजिकल फेस्टिवल रहेगा, इवेंट रहेगा और खतरनाक म्यूजिशियन आ रहे हैं। तो वो जो लोग मुझको एक कहते हैं
पास्टर वी आर जस्ट एक्साइटेड, पास्टर वी आर एक्साइटेड है। ये जो अंग्रेजी कई बार हम लोग को समझ नहीं आती, एक्साइटेड का मतलब क्या है, क्योंकि वो लोग कभी टाइम से नहीं आते, इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटेड है जिस दिन प्रोग्राम हो रहा है उस दिन उनको 9 बजे आना है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 9:45 आ रहा है। मैं इस एक्साइटमेंट का मतलब ही नहीं समझ पाया। और अंग्रेजी का है कई बार जो है बड़ी ही मतलब अजीब सी लैंग्वेज है। हिंदी में बहुत जल्दी समझ में आता है, अंग्रेजी में कई बार समझ में नहीं आता है हम लोगों को बात। अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है तो उसको अंग्रेजी में डांटते हैं लोगों को, मैंने देखा है। मेरे घर में भी अभी एक छोटा सा हम लोगों ने डॉगी खरीदा है, और जब भी वो भागता है पीछे पीछे तो उसको अंग्रेजी में डांटते हैं, नो जिंजर नो, जस्ट सिट डाउन, जस्ट शट अप, गो अवे, मूव मूव मूव। 5-6 लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग। हिंदी में क्या वो एक ही बार बोलना पड़ता है, हट, खत्म। आई लव हिंदी, मैं इसलिए हिंदी बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, एक हम लोग का एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है ना, एक जो प्रोडक्ट है मार्केट में ड्रिंक्स का, तो एक सीधी बात सबको मालूम है, पर बिशप सर यहाँ बैठे इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पास्टर भी बैठे हैं आपके। हम लोग कल बात कर रहे थे आपसे, जो थीम है आपका एम्पावरिंग यूथ फॉर बेटर फ्यूचर। आप नौजवानों को उत्तम भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं, आपको शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस तरह का जो एनवायरनमेंट, इस तरह का माहौल आपको हर समाज में नहीं मिलेगा, हर समाज में नहीं मिलेगा। हर समाज में भी युवा सम्मेलन होता है, उनका युवा सम्मेलन होता है परिचय सम्मेलन, विवाह के लिए लड़के लड़की का परिचय सम्मेलन। क्यों इकट्ठे इस सम्मेलन में? शादी करने के लिए। उनका जो सम्मेलन चल रहा है किस बात को लेकर के? रोजगार सम्मेलन। उनका सम्मेलन हो रहा है कुछ प्रोडक्ट को लेकर के। मसीहत में प्रभु यीशु मसीह के लोग हमेशा जब इस तरह के सम्मेलन में इकट्ठे होते हैं, उन सब का जो उद्देश्य होता है, आपके फेडरेशन का, आपके अगुओं का, ये क्या उद्देश्य होता है? आपको वो बल मिले, वो शक्ति मिले, वो ऊर्जा मिले, आप एम्पावर हो, ताकि आपको एक बेहतर फ्यूचर मिल सके, आपको एक जबरदस्त फ्यूचर मिल सके। और उसका जो आधार है वो परमेश्वर के वचन पे है। और जब हम लोग कलीसिया में परमेश्वर के राज्य के लोग इकट्ठे इस तरह से होते हैं, साल में पता नहीं कितने बार अपने इकट्ठे होते हैं, पर हर कलीसिया में साल में कम से कम एक बार युवा सम्मेलन के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, और वचन के आधार पर सुसमाचार सुनाया जाता है, वचन प्रचार किया जाता है। क्योंकि इस वचन के अंदर में वो सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे सिद्धांत हैं जो आपको सर्वोत्तम भविष्य दे सकते हैं। इस वचन के आधार पे ही आप जो है अपने जीवन को सफलता के क्षेत्र में ला सकते हैं। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट प्रभु ने लिखा है हमारे बारे में, यिर्मयाह 29:11 में, कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वो तुम्हारे हानि की नहीं वरन तुम्हारे लाभ के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने जब पूरी दुनिया को बनाया तो उसने कहा अच्छा है, बेहतर है, उसने अप्रिशिएट किया। तो जब पाप मनुष्य के बीच में आता है तो जो अच्छा था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और पाप का निश्चित परिणाम है। इसके पहले पाप आया, कोई गरीबी नहीं थी। गरीबी का संबंध पाप से है, बर्बादी का संबंध पाप से है, बीमारी का संबंध पाप से है, निराशा का संबंध पाप से है, मायूसी का संबंध पाप से है, रिश्तों का टूटने का संबंध पाप से है। तो जहां भी पाप है वहां पे जो है आपको ये सब चीजें मिलेंगी। मैं आपको उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। क्योंकि हम लोग जो है, मैं आपको परमेश्वर के उन दासों के बारे में जो है से उद्देश्य उदाहरण देना चाहता हूं जो हमसे पहले आए हुए हैं, हजारों साल पहले। भारत देश ने दुनिया को 4 प्रमुख धर्म दिए हैं। कौन कौन से पता है आपको? पूरी दुनिया में एक लिस्ट है जहां पे कहीं पे लिखा है 15 धर्म है पूरी दुनिया में सबसे बड़े मेजर रिलीजन्स, एक जगह में 11 लिखा है, पर पॉपुलर जो करीब 9 हैं। उनमें से 4 का जन्म भारत देश में हुआ है। कौन कौन से? आप लोग मुझे ऐसे देख रहे, क्या प्रश्न पूछ रहे हो? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैनिज्म, जैन धर्म, सिख धर्म। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म।
और उसके अलावा दुनिया में अन्य धर्म है, जैसे इस्लाम है, पारसी धर्म है, जुडाइज्म है, सेंटोइज्म है, टाओइज्म है। ये धर्म अलग हैं, ठीक है। परंतु प्रमुख जो पॉपुलर जो पूरी दुनिया में धर्म है, ये 4 धर्म है जिनमें जिनका धर्म का जो है जन्म हमारे देश में हुआ है। हमारे देश को जो है सनातन के नाम, सनातन देश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हर नदी, नाले, तालाब और पहाड़ियाँ, उनकी पूजा की जाती है, उनको पवित्र माना जाता है। यहाँ पे हर चीज की पूजा की जाती है। कहा भी जाता है कण कण में भगवान बसते हैं, कहा जाता है। और हमारा देश एक बड़ा आध्यात्मिक देश है, एक बड़ा आध्यात्मिक देश है। और आध्यात्मिकता से जो है लोग जो यहाँ पे भरे हुए हैं। आप कहीं भी जाइए, लोग को आपको आध्यात्मिक पाएंगे। हर काम को करने के पहले वो जो है कुछ पूजा पाठ करते हैं। हमारे देश में कुछ खरीदते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इवन तो तराजू लेकर के आते हैं, उसमें भी धागा बंधा रहता है। देखिए आप, बहुत अच्छे से वो लोग पूजा पाठ करते हैं। अब आपने उनसे मांगा आधा किलो चीनी, भले ही वो 400 ग्राम दे रहा हो, बात अलग है। तौल भर रहा है, पूजा करके 500 ग्राम का बाट लगा है, 400 ग्राम आपको चीनी दे रहा है। ये समस्या हमारे देश की। मैं जब भी बाजार में जाता हूँ, जयपुर टूरिस्ट सिटी है, कभी मैं खरीदने जाता हूँ, सुबह सुबह मैं जरूर जाता हूँ, मैं सुबह खरीदने, क्योंकि सुबह खरीदारी अच्छी होती है। बोहनी का टाइम है, पता नहीं आप लोग समझते नहीं, बोहनी। वो हमेशा कहते हैं बोहनी का टाइम है, सब हम झूठ नहीं बोलते आपसे, ठीक है, कैसे गले वाले पकड़ के। जब मैं जाता हूँ सुबह में, तो वो लोग वो पानी छिड़क रहे हैं, वो जो है वो नींबू और मिर्चा लटका रहे हैं, उसके बाद में फूल लगा रहे भगवान को, पूजा पाठ करके जो है। देखिए मैं बोला ड्रेस कितने की है ये, बच्चों की घाघरा चोली। ये साहब देखिए आप पहले कस्टमर हैं, बोहनी का टाइम है, सुबह सुबह अभी मैंने आरती उतारी है, ये जो है 1100 का है। मैं बोला मैं तो नहीं लेता, सच बोल रहा हूं मैं। चलिए आप पहले कस्टमर 900, बिल्कुल बोहनी का टाइम है, आप पहले कस्टमर हमारे भगवान है। उसके बाद में मैं तो नहीं ले रहा, 700, 500। मैं बोला मेरे को रेट मालूम है, मैं तो नहीं लेता। सर अब भी मैंने पूजा की है, माता की सौगंध, 450 में दे दो, इससे कम नहीं होगा। मैंने लेना ही नहीं है मुझे, मैं जा रहा हूं। फाइनली वो 300 रुपए मुझे दे रहा है। आप लोगों के साथ भी होता होगा विहारा में जब जाते होंगे शॉपिंग करने, तो ठीक है, आपके साथ भी होता होगा। हमारे देश में इतने धर्म हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, हर चीज से चीजें जो जुड़ी हुई हैं हमारे देश में, हर चीज से। पर पता है, भारत देश दुनिया की जब भी लिस्टिंग होती है, दुनिया के सबसे अनहैप्पी देशों में भारत देश का नंबर 161 है, 161। दुनिया में करीब 180 देशों का हमेशा जो है जांच होता है, लिस्ट बनती है, उनमें हम लोग पीछे हैं। हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे गरीबी में। हम लोग जो है जो नंबर है 149वां नंबर है। हम लोग गरीब देश में कहलाते हैं। भारत देश भले कितना बोलते हम लोग की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो रही है, हमारा जीडीपी इतना बढ़ रहा है, हमारा ये उतना बढ़ रहा है, पता नहीं, पर हमारा देश जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी कई जगह में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज भी जो है कई जगह में स्कूल नहीं है। हॉस्पिटल के लिए बंदों को जो है, गरीब को जो है कंधे के ऊपर बैठाल करके 15 किलोमीटर जाना पड़ता है एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। आज भी आप शहर में जाइए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो रिफर कर देंगे मुंबई। आप जाइए विहारा में ट्रीटमेंट कराने, बोलेगा साहब अहमदाबाद जाओ। आप अहमदाबाद जाते, लोग कहते हैं साहब आप मुंबई जाओ, मुंबई कहते हैं वेलोर जाओ। हम लोग आज भी रिफर हो रहे होते हैं इस देश में। डेली लोग मरते रहते हैं यहाँ पे, आए दिन गाड़ियां पलट रही, आए दिन लोग मर रहे हैं। आप इस चीज को नोटिस करना कि चारों तरफ दुनिया में भारत देश के बारे में चर्चा जरूर है, पर आप पाएंगे हम लोग जो है बहुत ही जो है दुखी देश हैं। दुनिया के सबसे दुखी देशों में हमारी गिनती होती है। उसका कारण क्या है पता है? क्या हमारे धर्म नहीं है? क्या हमने दुनिया को प्रमुख धर्म नहीं दिए हैं? क्या हम लोगों ने जो है लोगों को बताया नहीं है? क्या हमारे पास ईश्वर देवताओं की कमी है? 33 करोड़ देव देवता और ईश्वर हैं। क्या हमारे पास में चीजें नहीं हैं? सब कुछ है, सब कुछ है। सुबह उठते ही जो है अजान हो रहा है दरगाहों मस्जिदों में, ठीक है, ईदगाहों में अजान हो रहे हैं, पूजा पाठ की घंटियां बज रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक आध्यात्मिक कीर्तन हो रहे हैं। आप जैसी टीवी खोलो कम से कम 16 चैनल हैं हमारे देश में। आस्था, जागरण, संस्कार, साधना, कितने चैनल है धार्मिकता के, फ्री चैनल जो 24 घंटे चल रहे हैं। उसके बावजूद भारत देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, अपराध है, बीमारियां हैं। हम लोग दुनिया के सबसे बीमार देशों में गिने जाते हैं, दुनिया के सबसे बीमार देशों में। एक 1040 विंडो एक सर्वे है मिशन का, 1040 विंडो, उसमें हम लोग आते हैं
और वो देश जो है 1040 विंडो में आते हैं जहां पे इस तरह की अराजकता मची हुई है। पता नहीं आप लोग कितने बार गवर्नमेंट में जाते हैं है अपने पेपर फाइल पास कराने के लिए। मेरे लिए सबसे निराशा का समय होता है जब कोई मुझसे कहता है कि ये अप्रूवल लेने जाना है तुमको शिक्षा अधिकारी के पास। मेरे पसीने छूटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जाऊंगा, बाबू जो है पान खा के पहले थूकने जाएगा, फिर उठ के आएगा, फिर पानी पिएगा, पूछे क्यों आए हो, हम बोलते हैं कि सब पे फाइल है हमारी मान्यता की स्कूल की। वो कहता है साहब बैठो, और आप बैठे हुए हो 2 घंटे तक। उसे बोलता लंच ब्रेक हो गया, मैं लंच के बाद बात करूंगा आपसे। लंच करने गया, उसका आता पता नहीं है, फिर लौट करके आता है, बोलता है साहब ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा पहले ही कह देते 3 घंटे पहले ही। बोले कुछ भार रखो, भार रखो इसमें। तो उनका पेपर वेट में कई बार उठा के रख देता था पहले। अब समझिए भार का मतलब, भार रखो इसमें। तो पेपर वेट रख दिया, बोले ये भार नहीं। समझाओ कोई इसको भार रखने का मतलब क्या है? मतलब कहता है पैसे दो। दैट्स व्हाट इट इज। वी आर लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट करप्ट नेशन। कारण क्या है पता है आपको? इस देश में जब तक मूर्ति पूजा है, इस देश में जब तक प्रकृति पूजा है, इस देश में जब तक ईश्वर का विरोध है, ये पाप के अधीन है और कोई भी संभावना नहीं है इस देश के बढ़ने की। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तू अपने लिए कोई भी मूर्त खोद के ना बनाना, ना ही किसी के आगे तू दंडवत करना, क्योंकि मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। अब हमारे देश को देखिए आपकी, यहाँ पे जो है हम लोग गाय का दूध दूहते हैं, कितना लीटर निकलता है मुझको मालूम नहीं। गुजरात में हमारे यहाँ पे तो सुबह 2.5-3 लीटर, शाम को 2.5-3 लीटर, कभी कभी 2 लीटर ही, 1.5 लीटर, डेली 5 लीटर एक गाय से। आपके यहाँ पे कितना दूध निकलता होगा? किसी के पास गाय है? इतना ही निकलता है भाई लोग, इतना ही दूध निकलता है। आप जाइए वहां पे हॉलैंड, इंग्लैंड, आप जाइए, आप जो है न्यू जर्सी, ठीक है, वहां पे उनको मशीन लगानी पड़ती है। वो क्यों मशीन लगा रहे हैं? अरे बाबा 40 लीटर दूध निकल रहा है। मेरे को भी कई बार किसान कहते हैं सर आप हॉलिस्टीन काऊ लाइए। मैं बोले क्या होता है? अरे हॉलैंड की काऊ लाओ यार, यहाँ पे हॉलैंड की विदेशी नस्ल लाओ। क्यों विदेशी नस्ल? क्योंकि विदेशी नस्ल की गायें जो हैं अच्छा दूध देती हैं। हम तो यहां तो पूजा भी करते हैं, हम तो उसको सूखी रोटी भी खिलाते हैं परसों का बासी, हम तो बहुत सेवा करते हैं, उसके बावजूद हमारी गाय 5 लीटर देती है, उनकी 40-45। नहीं, नस्ल का फर्क होता है। मैं कहता हूं उनसे नस्ल का फर्क नहीं है, हमारी प्रवृत्ति का फर्क है। हम लोग जो हैं, हम जो अपराधी हैं, पाप के कारण अपनी जिंदगी जो बिता रहे हैं, उसके कारण से हमारी भूमि श्रापित है। और भूमि में जो कुछ भी उगता है उससे उनको फल नहीं मिलता है। फलस्वरूप होता क्या है? वो कभी भी हमारे लिए बेहतरीन चीजें पैदा नहीं कर सकती हैं, कभी पैदा नहीं कर सकती हैं। पाप हमेशा गरीबी को लेकर के आता है। और आप नौजवानों, आपको पाप से कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। कल हम लोग बात कर रहे थे यूसुफ के बारे में। यूसुफ 17 साल का नौजवान था। जब उसकी जिंदगी में समस्या आती, अगले 13 साल तक वो संकट में पड़े रहता है, परंतु वो परमेश्वर यहोवा की तरफ देखता रहा। और वचन बार बार कहता है यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग था। आप कभी, आपको भाइयों ने मारा पीटा नहीं है, आपको गड्ढे में फेंका नहीं गया है, आपको गुलाम होकर बेचा नहीं गया है, आपके ऊपर में कोई आरोप झूठा लगा नहीं है बलात्कार का, आपको जो है कभी सजा नहीं मिली है, आप कभी जेल नहीं गए हैं। आप यूसुफ से बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट में हैं। तो बात इस बात की है, आप अपने परमेश्वर को ढूंढिए और आप कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना मत ढूंढिए कि मैं कैसे बेहतरीन एक जिंदगी बिताने के लिए शॉर्टकट मारूं। There is no shortcut to good life. There is only one way. That's Jesus Christ. परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह छोड़ा और कोई रास्ता नहीं है। नंबर 2, हम लोगों ने बात की थी कल शाम के समय में दाऊद के बारे में। और दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब वो छोटा बच्चा था, नौजवान था, अपने भेड़ बकरियों चराया करता था, परमेश्वर के स्वरूप को उसने पहचाना था। छोटी छोटी चीजों में उसने परमेश्वर को पाया था। छोटी एनवायरनमेंट में, छोटी परिस्थितियों में आप अपने छोटे छोटे पलों में परमेश्वर को पाइए। और उसके लिए आपको भाषा जाननी जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको जो है अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको लोकेशन बदलना जरूरी नहीं कि नहीं मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना, वहां पे परमेश्वर में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो जो है बड़ा अच्छी सिटी है। आप जहां भी हैं, आप चाहे जंगल में हैं, गुफा में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, परमेश्वर वहां पे आपको मिलने आएगा। आप परमेश्वर को शामिल कीजिए अपनी जिंदगी में। और जो एक चरवाहा था वो राजा बना। एक चरवाहा था
जो भेड़ बकरे चराता था, छोटी उम्र में टीनेजर था वो, 17-18 साल का था वो, जब अपनी जर्नी वो शुरू करता है, जब वो 30 बरस का होता है, वो इज़राइल का शासक बनता है और सबसे सफल शासक बनता है। आज की सुबह जो है मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा एलिया की तरफ। मेरे साथ कहिए एलिया। एलिया बड़ा आसान है इसको जो है याद रखना, इस नाम को। एलिया है ना, ये ले लिया क्या बोलते ना, उसने ले लिया, तो ऐसी एलिया है, बड़ा आसान इसको याद रखना है। पहला राजा किताब 17 अध्याय, पहला राजा किताब 17 अध्याय, उसका हम लोग जो है एक से पढ़ना आरंभ करेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद हम सब मिलके पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, उसका हम लोग 1 से लेकर 23 पद तक हम लोग पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा हम सब मिलके पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसे सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। यहां से चल पूरब की ओर जा और करीत नमक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। यहोवा के वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नमक नाले में जाकर छिपा रहा। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण से वह नाला सूख गया। चल सिदोन के सराफत नगर में जाकर वहीं रहे, सुन मैं वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तब वह चले गए, एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसने सांस लेना बंद हो गया। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे गोद में लेकर अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लेटार दिया। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। इसलिए ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुख से निकलता है वह सच होता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। सभी कहें आमीन। हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक बड़ा चैप्टर है, 23 पद है इसमें, और यहाँ बैकग्राउंड है एलिया की जिंदगी के बारे में। एलिया जो नाम का अर्थ होता है कि परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर है, यहोवा तेरा परमेश्वर है। और एलिया को परमेश्वर जो है एक ऐसे सीजन में चुनता है जबकि कि इज़राइल के ऊपर में जो शासक था वो विकेडनेस या अपराध में जी रहा था। उसकी पत्नी जो जजबेल या इजेबेल थी, वो जो थी अन्य जाति थी, अविश्वासी थी, मूर्ति पूजक थी। और वहां के आने के बाद में जो है वहां के एनवायरनमेंट या माहौल को उसने बदल दिया। और अहाब राजा जो उसका पति था उसको वो इन्फ्लुएंस से प्रभावित करती थी। याद रखिए, कभी भी अपनी जिंदगी में
मैं प्रेम विवाह का जो है विरोधी नहीं हूं, पर मैं विरोधी इस बात का हूं कि कभी भी आपके जिंदगी में जब निर्णय आता है कि आप अपना जीवन साथी चुने, आप परमेश्वर के घर से ही अपने लिए जीवन साथी चुने। डू नॉट डिसाइड इमोशनली। आप जो है कभी भी इमोशनल मत होइए कि आप अविश्वासी को, आप जो है अन्य जाति को, गैर जाति के लोगों के साथ में आप जो है अपने रिश्तों को बनाएं। और यहाँ पे जो है इसी कारण से आहाब का जो माहौल था पूरा बदल गया था। और वहाँ की जो स्त्री थी जजबेल या इजबेल, उसने जो है पूरे इजराइल में मूर्ति पूजा का माहौल लेकर आई थी, क्योंकि वो रानी थी, शी वॉज द क्वीन। और इसी कारण से उसके साथ उसके पंडित थे, उसके पुजारी थे, जो उसके साथ में बाल देवता की उपासना किया करते थे। अब यहाँ पे जो है सिचुएशन तैयार हो रही है। और याद रखिए कि इसके पहले परमेश्वर जो है उस भयंकर समस्या से डील करे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे देश में क्यों आशीष नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण मूर्ति पूजा है। 33 करोड़ देवी देवता और ईश्वर हैं, 33 करोड़। और जो है हर समय जो है एक नए ईश्वर की यहाँ पे उत्पत्ति हर 10 साल में होती है। लोगों ने ईश्वर बनाना बंद नहीं किया है, और 33 करोड़ अभी बन चुके हैं। आप विदेश में जाइए, वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं है। चाहे आप जो है यूरोप जाइए, चाहे अमेरिका जाइए, वहाँ पे मूर्ति पूजाएं नहीं होती हैं, वहाँ प्रकृति पूजा नहीं होती हैं। और वहाँ इसी कारण से परमेश्वर का कोई भी श्राप नहीं है। इसलिए वहाँ के अन्न जल पे परमेश्वर की आशीष है, वहाँ पे स्वास्थ्य है, वहाँ पे स्वास्थ्य है, वहाँ पे लोग खुश हैं और इत्मीनान में हैं, उनकी इकोनॉमी मजबूत है, बेरोजगारी नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, लंबी उम्र लोग वहाँ पे जीते हैं। जहाँ कहीं पर भी मूर्ति पूजा होती है, वहाँ पे समस्याएं आरंभ हो जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग पाते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि इजबेल ने अपने साथ अपने देवताओं को लेकर के इजराइल में आए। जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग अचानक से बाल देवता की उपासक हो गए, और बाल देवता वहां का एक बड़ा जो है चुनौती बन गया। परमेश्वर यहां से एक व्यक्ति को उठा रहा है, इसका नाम एलिया है। और इसके पहले कि कन्फ्रंटेशन हो, आमना सामना हो, उसके पहले परमेश्वर जो है एलिया को तैयार कर रहा है। इसके पहले कि करमेल पर्वत के ऊपर में बाल देवता के पुजारियों का सामना एलिया करे, परमेश्वर जो है उसको नाले में चुपचाप लेकर के जा रहा है। और यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे परिस्थिति क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशी में था, आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में बिना कहे, मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। देयर इज अ मिरेकल इन योर माउथ। विश्वासी नौजवानों, बेटे बेटियों, आपके जुबान में चमत्कार है। कोई कहे आमीन। आपके जुबान में चमत्कार है। वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने जो है अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और जब आप पढ़ते मत्ती किताब 16 अध्याय उसका 18-19 पद, वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया पत्थर पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे उस स्वर्ग में भी तुम्हारे लिए खुलेगा। वचन स्पष्ट कहता है कि विश्वासियों के लिए प्रभु ने चमत्कारों को रख रखा है। यदि आप मरकुस किताब जो है 16 अध्याय 15 पद से पढ़ना आरंभ करें, वहां पे लिखा हुआ है, और विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालेंगे, नाशक वस्तुओं को पीजा तो उन्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु का वचन बार बार ये कहता है, विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। There's no impossibility with the God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्ग परमेश्वर आपके लिए निकालेगा, मार्ग परमेश्वर हमेशा आपके लिए निकालेगा। ट्राई, आप मौका उसे दें, आप कोशिश करें कि प्रभु आपके लिए मार्ग निकाले। और यहाँ पे एलिया के बारे में लिखा हुआ है कि एलिया को परमेश्वर जो है कह रहा है, तू जा। और एलिया यहाँ पे जाता है, कहता है कि परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। आप और मैं प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आपने कहीं पढ़ा है बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करता है। आप जितने बार परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे प्रियो, बार बार ये वचन आया हुआ है कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने सब कुछ रख छोड़ा है। और आप और मैं, हम सब विश्वासी हैं। आप अपने पृष्ठभूमि की तरफ देखना बंद कीजिए। आप बार बार पीछे पलटकर निराश मत होइए।
डिप्रेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा एजुकेशन क्या है, मुझको अंग्रेजी नहीं आती है, मैं हैंडसम नहीं दिखता हूं, मेरे कपड़े लत्ते उतने अच्छे नहीं हैं, मेरे पास में वो परिस्थितियां नहीं है, मेरे पास में चीजें नहीं हैं। आप शिकायत करना बंद कीजिए। डोंट कंप्लेन। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको वहां से उठाना शुरू करेगा। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको उठा करके काम करना शुरू करेगा, प्रोवाइडेड। बात इस बात की है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको उठा करके खड़ा करेगा। और यहां पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जैसा एलिया ने कहा वैसे ही हुआ। ना तो बारिश हुई, ना वहां पे ओस पड़ी। अब प्रभु का वचन जो है एलिया के पास में है, प्रभु का वचन कह रहा है उसको कह रहा है, तू पूरब की तरफ जा, करित नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छिप जा, करित नामक नाले में जाके छिप जा। जैसे हम लोग के दिमाग में नाला शब्द आता है, तो नाला जो है हमारे शहर में नाला जोड़ा अजीब टाइप का होता है। नाला जो है वो नालियों से जुड़ा होता है, और नालियां घर के जो है बाथरूम से जुड़ी होती है। और वो नाले में जो है सब चीज बहते रहता है, ठीक है, पन्नी बह रहा है, उसमें प्लास्टिक बह रहा है, ठीक है, गंदे कपड़े बह रहे हैं, उसमें कुत्ते लौट रहे हैं, उसमें सुअर लौट रहा है, और वो नाला जो चलते चले। यार जब मैं पहली बार वचन को पढ़ा था कि परमेश्वर का जाके तू नाले में चला जा, मैं सोचना कि परमेश्वर कैसा खराब है, उसको नाले में जाने बोल रहा है। ये नाला वाला नाला नहीं है जो हम लोग देखते हैं व्यारा में और अहमदाबाद में। ये वो नाला है जो यर्दन के वचन में लिखा हो, यर्दन के पूर्व में बहता है। मतलब यर्दन से जो है वो निकला, उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ब्रुक। ब्रुक का मतलब है एक जो है धारा बह के निकली हुई है। यर्दन से एक धारा बहकर निकली हुई है, और उसका नाम करीत है। और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को मानकर वो करीत नामक नाले में जाके छिप गया। और यहां लिखा हुआ है 6 पद में, सुबह और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। वो नाले का पानी पिया करता था। वचन में लिखा हुआ है कि कौवे उसके लिए सुबह और शाम पानी अब जो है मांस और रोटी लेकर के आते थे। सुबह और शाम 2 टाइम उसको खाना मिल रहा है। कौवे लेकर के आ रहे हैं। बाइबल में कौवों को जो है अनक्लीन या अशुद्ध पक्षी कहा गया है। इवन हम लोग भी आज भी मानते हैं। आप लोग चिड़िया खाते होंगे मार करके, खाते हैं? खाते हैं। हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग मारते थे, गुलेल थी हमारे पास, हम लोग भी जो है आपके जैसे बड़े पले हैं, गुलेल लेके जाके गोरैया मारते थे। बड़ा आसान है गोरैया मारना, ठीक है, हालांकि उसमें निकलता 10 ग्राम मटन था, पर मारते थे उसको हम लोग। कौवा कभी नहीं मारा। और आप लोगों ने भी कभी कौवा नहीं मारा होगा? खाते हैं यहाँ पे? नहीं बोल रहे। अशुद्ध पक्षी के रूप में बाइबल में कहा गया है, अशुद्ध पक्षी बाइबल में। और बाइबल लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी महासामर्थ से उस पक्षी को ही इस्तेमाल करना आरंभ किया, क्योंकि कौवा ही है जो कि बसाहट या जहां निवासी रहते उनके आसपास घूमता है। कौवा ही है जो कि मीलों उड़ जाकर के अपना भोजन पकड़ करके लाता है। अब परमेश्वर को मालूम था कौवों का क्या काम है। कौवों को जो है सफाई का दरोगा भी कहा जाता है। वो साफ सफाई करते रहते हैं, और कई बार सफाचट भी कर देते हैं। आप अपना खाना रखिए बाहर। कौवे जो हैं यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा से रोज उसके लिए सुबह शाम जो है खाना लेकर के आ रहे हैं। और एलिया यहाँ पे अपनी जिंदगी बेहतरीन ढंग से गुजार रहा है। खाना समाप्त हो चुका है इजराइल में, भोजन समाप्त हो गया इजराइल में, लोग भूखे मर रहे हैं वहां पे, पर एलिया को जो कोई भी घटी कमी नहीं हो रही है। एलिया जो है 3.5 साल तक वहां पे अपनी जिंदगी बेहतर ढंग से काट रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है रोज सुबह शाम उसके लिए कौवे जो है खाना लेकर के आते थे। गॉड इज प्रोवाइडर फ्रेंड्स। परमेश्वर मुहैया करने वाला है। आप अपने जीवन के उस इंसिडेंट या उस घटना को इस समय में याद कीजिए जब प्रभु ने आपके लिए कुछ मुहैया किया है। आप लिस्ट बनाइए उसकी, कब कब परमेश्वर ने आपको दिया है। आप ढूंढिए कब कब परमेश्वर से आपने मांगा और आपको मिला है। और याद रखिए विश्वासियों की डिक्शनरी में इत्तेफाक, अरे अचानक हो गया, पता नहीं अचानक हो गया, इत्तेफाक से हो गया। जो इत्तेफाक है, बाई चांस, ये शब्द जो है विश्वासियों की डिक्शनरी में होती हैं। परमेश्वर के विश्वासी हैं, वो मुहैया करेगा और वो सचमुच में मुहैया करेगा। आप मांगिए तो सही उससे।
वचन में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें और ढूंढो तो तुम, वचन में साफ लिखा हुआ है, मांगो तो तुमको मिलेगा, मांगो तो तुमको मिलेगा। मुझे याद है जब मैंने परमेश्वर की सेवकाई का निर्णय किया, तो मेरा जो एडमिशन है, मेरे पास्टर ने एक ऐसे कॉलेज में करा दिया जो इंग्लिश मीडियम का था, और अंग्रेजी में मेरा हाथ बहुत तंग था उन दिनों में, अभी भी है, ज्यादा नहीं बोल पाता हूं मैं। और उन दिनों बड़ा कठिन था मेरे लिए अंग्रेजी में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहा था। अब पास्टर ने कहा कि तुम बेंगलोर जाओ पढ़ने के लिए, वहां से प्रभु की सेवकाई के लिए निकल के आओ। तो मैं प्रार्थना यही करता था कि प्रभु मुझे अंग्रेजी सिखा दे या कोई दूसरा हिंदी मीडियम का बाइबल कॉलेज बता दे, दोनों में से कोई एक। एनीवे, मेरा एडमिशन हुआ, मैं बेंगलोर चले गया, बहुत रोया जाते जाते रास्ते भर, क्योंकि मेरा ऐसा था कि वहाँ जीऊँगा कैसे, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते हैं, मुझको अंग्रेजी नहीं आती थी। और एक जिस पहला दिन था जब मैं पहुंचा, अपना सामान वामान रखा, शाम के समय में कपड़े वपड़े पहन के जो है बाहर जब मैं निकला, मैं और मेरे जो दो दोस्त थे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे अंग्रेजी की, और तार के ऊपर में एक कौवा बैठा हुआ था। उसको देखते ही मैंने अंग्रेजी में कहा, दिस इज कॉक। तो मेरा फ्रेंड बोलता है, वो कॉक नहीं, वो क्रो है। तो बोला, कॉक का मतलब क्या होता है? बोले, मुर्गा। आप कल्पना करो मेरी कितनी अच्छी अंग्रेजी थी। अपने कमरे में जाकर मैं खूब रोया, मैंने परमेश्वर यहाँ नहीं रहना, मुझे डेली बेइज्जती होगी मेरी, आज शुरुआत हो गई है। जब खाने की लाइन लगती थी, मैं सबसे पीछे खड़ा होता था प्लेट लेके। क्यों? क्योंकि यदि आप सामने खड़े हो और जो बंदा, जो वार्डन है, जो खाना बांट रहा है, वो प्रेयर देता था, अब प्रेयर अंग्रेजी में करनी पड़ती थी, तो मैं डर के मारे पीछे लाइन में खड़ा रहता था, बहुत पीछे, प्लेट लेके चुपचाप, कि देखे ना मुझे करके। कारण खाली एक ही था कि वहां अंग्रेजी में प्रेयर करनी पड़ेगी, मुझे आती नहीं थी। मैं प्लेट लेके चुपचाप एक दिन खड़ा हुआ था, अचानक से बोला, रजनीश। तो मैं देख रहा हूँ पीछे पलट के, किसको बुला रहा है? कोशिश किया, आपको बुला रहा है। बोले, यू रजनीश आए। बोला, आप कल्पना करो मैं कितने भारी मन से मीलों यात्रा करके पहुंचाऊंगा धीरे धीरे। मैं कहा आज मेरी बेइज्जती होनी है। और वो कह रहा है मुझसे, प्रे प्लीज प्रे। बोला, आए प्लीज प्रे। मैं उसको धीरे से कहा, मैं हिंदी में करूंगा, आई विल प्रे हिंदी। बोला, यस, गॉड हियर्स हिंदी। बोले, यस। मैंने हिंदी में प्रार्थना की, अपने कमरे में लौट करके मैं आया, मैं खूब रोया। मैंने कहा, परमेश्वर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, और ये माहौल है, ये एनवायरमेंट है, मुझे कुछ सीखना चाहिए। अब मुझको कख नहीं आता है अंग्रेजी का, कुछ भी नहीं आता है, अब मुझको यहां पे कैसे मैं जीऊंगा? अब मैं रोज रो रो के प्रार्थना करता था, रोज रात को रोता था मैं, अब प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे आप अंग्रेजी सिखाइए, आप अंग्रेजी सिखाइए। मैं खूब प्रार्थना करता था, अपनी हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बाइबल लेके बैठ के पढ़ता था, प्रार्थना में खूब करता था, घंटों प्रार्थना करता था मैं। शाम को 4 से 6 बजे तक मेरे प्रार्थना का समय था, उसके बाद मैं रात को 9 से 11 में प्रार्थना करता था, 4 घंटे डेली प्रेयर करता था। अब प्रार्थना में मेरा एक पॉइंट जरूर होता था, प्रभु मुझे अंग्रेजी सिखा। परमेश्वर मुहैया करने वाला है प्रियो। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, जो स्टूडेंट थे 22 स्टूडेंट में मेरा नंबर सेकंड था स्टडी में। सेकंड ईयर में मैं सबसे टॉप में था, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में मैं कॉलेज से गोल्ड मेडल लेके निकला। मेरा जो स्कोर होता था लैंग्वेज में 99, 100, मैं ऐसे स्कोर करता था। हिब्रू जो ग्रीक था उसमें मेरे 100 में 100 आता है। ग्रीक जो सबसे कठिन लैंग्वेज है, और जिस व्यक्ति ने ग्रीक समझ लिया वो अंग्रेजी उसके लिए बहुत आसान है। तो जब मैं गोल्ड मेडल अपने कॉलेज में पढ़ाई में लेकर निकल रहा था, मुझको कॉलेज के प्रेसिडेंट ने बुलाया, उसने कहा, रजनीश एक अपॉर्चुनिटी आपको है, जॉइन अस, कि तुमने इतना स्कोर किया है 4 सालों में कि हम आपको फैकल्टी के रूप में ले लेंगे, और जो 3 साल का कोर्स है मास्टर्स का, हम आपको 1 साल में दे देंगे, क्योंकि आपका इतना अच्छा स्कोर रहा है 4 सालों में। आपको विश्वास नहीं होगा कि कॉलेज से जब गया था, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। जब मैं कॉलेज से निकल कर आ रहा था,
वही कॉलेज मुझे बुला रहा था वहां पे पढ़ाने के लिए। परमेश्वर मुहैया करता है, परमेश्वर मुहैया करता है। आपके पास में चुनौतियां होंगी प्रियो, आप मुहैया करने वाले परमेश्वर को ढूंढिए, आप मुहैया करने वाले परमेश्वर को ढूंढिए। इसके पहले कि परमेश्वर जो है उसको कार्मेल पर्वत पे लेके जाए, परमेश्वर उसको नाले में छिपा करके रखा हुआ है और वहां पे उसको प्रूव कर रहा है, मैं मुहैया करने वाला परमेश्वर हूं, मैं मुहैया करने वाला परमेश्वर हूं। बस इस बात की है, आप सेंसिटिव रहिए, आप उसको सुनिए कि वो क्या कहना मांग रहा है। आपके इरादे नेक होने चाहिए, आपके इरादों में जो है कुछ भी जो गुप्त बात नहीं होनी चाहिए। इसके पहले कि एलिया जो है कर्मेल पर्वत के ऊपर में जा करके अपने मैच्योरिटी का प्रदर्शन करे, अपनी परिपक्वता दिखाए और बाल देवता के पुजारी के सामने जो है सीना तान के खड़ा हो, उसके पहले उसके लिए जरूरी था कि वो करीत के नाले में बैठकर परमेश्वर के मुहैया करने वाले हाथ को देखे। अब यहां पे कौवे रोज उसका भोजन लेकर के आ रहे हैं, उसने दुआएं मांगी थी। दिन भर बैठ के वो क्या करता होगा? उसके पास कोई मोबाइल तो था नहीं कि वो बैठ के गेम खेलता, उसके पास कोई मोबाइल तो था नहीं कि वो जो है इधर कभी वो इंस्टाग्राम में घुस रहा है, कभी फेसबुक पे घुस रहा है। उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल एक ही बात थी, वो और उसका परमेश्वर यहोवा। उसे छोड़ा उसके बाद में कोई बात नहीं थी। वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ था। स्पेंड मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जितना समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेंगे प्रियो, आप शूरवीर और योद्धा बनेंगे। आप जितना उसकी उपस्थिति में रहेंगे, आप महासामर्थी बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले चमत्कार किए, वो प्रार्थना में था। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने के बाद में वो प्रार्थना में है, वो पूरी रात पहाड़ी पे प्रार्थना कर रहा है। ही इज प्रेइंग, ही इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप और मैं जितना प्रभु के उपस्थिति में हैं, हम लोग उतना ज्यादा परमेश्वर को मौके देंगे कि वो हमारे लिए कुछ अद्भुत करे। आमीन। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। बात इस बात की है, आप उसे मौका दें। अब यहां पे जो है जिंदगी उसकी बेहतरीन कट रही, बाइबल बताती है कि वो जो है वहां पे बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहा है। 7वां पद कहता है, कुछ दिन बाद उस देश में वर्षा न हुई कारण से वो नाला सूख गया। 8वां पद कहता है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चल सीदोन के सरापत नगर में जाकर वहां सुन कि वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और अतः वहां से चल दिया, सरापत नगर पहुंचा। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसे बुलाकर उसे कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ले आ। 11 पद कहता है, जब वह लेने जाए तब उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक छोटा रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास ले दिया। अब यहां पे परमेश्वर जो है उसे वचन दे रहा है। सी याद रखिए, आपके पास में आपकी जिंदगी का पूरा रोड मैप नहीं है। इस समय में आपको मालूम नहीं कि 2024 में आपके लिए क्या होने जा रहा है, 2025 में आपके साथ में क्या होगा। अन गुड परफेक्ट, ये बहुत बेहतरीन है कि कई बार जो है सरप्राइज और रहस्यों के लिए भी आपको जो है मौके देने चाहिए और आपको खुश होना चाहिए। 2024 में क्या होगा आपके साथ आपको मालूम नहीं है। और जो परमेश्वर के लोग हैं उनको जो है जानना जरूरी है कि उनके लिए सारी बातें मिलकर अंत में भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28, आपको और मुझको जानना जरूरी है कि परमेश्वर जो है ने हमारे लिए अद्भुत रखा है। परमेश्वर ने नाले में जाने के लिए कहा उसे, वो करीत के नाले में जाके बैठा हुआ है, अपनी जिंदगी बेहतरीन वो काट रहा है। अब यहां पे नाले का पानी सूख गया, कौओं का आना बंद हो गया। अब क्या कह रहा है परमेश्वर, तू उठ, अब तू जो है पास में एक जगह है उसका नाम है शराफत। अब वो कहता है शराफत की तू नगर में जा। अब उस नगर में पहुंचता है तो उसको वहां पे एक विधवा मिलती हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुझे वहां पे एक स्त्री मिलेगी जो विधवा है। और जब वहां पे पहुंचता है तो वहां पे वो विधवा लकड़ी बीन रही थी और कहता है अपने पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर के आ। जब पानी लेने जा रही थी तो उसने उससे कहा, मेरे लिए थोड़ी रोटी भी तू लेकर के आना जब तू आएगी लौटते हुए। 12वां पद बहुत ही क्लाइमेक्स है। यहां लिखा हुआ है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी भी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और 2-3 लकड़ी बीनकर ले आती हूं, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। कल्पना करें कि जब एलिया सुन रहा होगा इस बात को तो उसके मन में क्या बीत रही होगी कि परमेश्वर तूने कहा था कि तू बरसात को रोक दे, मैंने कहा बरसात रुक जा और वो रुक गया। तेरे पास में प्लान था
कि प्लान था तू करीत के नाले में जा। मैं वहां पहुंच गया, जिंदगी अच्छे से कुछ हफ्ते कटे ही थे, तूने वहां पे जो पानी सुखा दिया। अब उसके बाद तूने मुझे भेजा है एक ऐसे नगर में जिसका नाम सराफत है, यहां पे विधवा के घर में भेज रहा है। तू मुझे विधवा के घर में भेज रहा है। बात वही होगी जो कल हम बात कर रहे थे, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, कोड़ और ऊपर से खाज। गरीबी में आटा गीला, थोड़ा सा आटा है उसमें भी पानी। आप लोगों ने सुना होगा सब कहावतें कि आपकी समस्या जो है थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हुई नहीं, पहले से बदतर आपकी स्थिति हो गई। थोड़ा सा आपने चीजों को व्यवस्थित करना शुरू किया था, अब सब कुछ तबाह होने लग गया। बहुत से बार विश्वासी आके मुझसे कहते हैं, पास्टर जी जब हम आपके चर्च में आना शुरू किया था ना, उस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, हम लोग तो इतने खुश हो गए थे कि प्रभु हमारे कितना काम कर रहा है। पर पहले से भी बहुत स्थिति बदतर हो गई। क्या हो गया? आपने प्रार्थना की थी ना कि बहू, हमारे बेटे की शादी हो, जब बहू आ जाए घर में, प्रार्थना की थी, हो गई, बहू आ गई घर में। बोला बहुत बढ़िया हुआ। वो तो बहू तो बिल्कुल डायन निकली। बोला अरे क्या हो गया? बोले खूब लड़ाई करती थी, फिर आपसे प्रार्थना कराते थे पास्टर जी कि संबंध अच्छे रहे, संबंध अच्छे नहीं रहे, एक दिन घर छोड़ के भाग गई। हम जब से इस चर्च में आए हैं ना, मुसीबत का तो अंत ही नहीं हो रहा है, पास्टर प्रे करो। कितने बार होता है हमारे साथ में प्रियो, आपने पास्टर से प्रार्थना करा के दुकान खोली है, सजाया है, वचन भी लिख दिया है, बाइबल रोज सुबह उठ के आके दुकान का खोल के बाइबल पढ़ते हैं, आप बैठे हुए, कस्टमर आए और कस्टमर नहीं आ रहा है क्योंकि वो कष्ट से कहीं मर गया है, वहां ही नहीं रहा है बंदा। आप बोर्ड लगा रहे, आप देख रहे कोई तो आओ, आपको सोचे पड़ गए मैंने तो पास्टर से प्रार्थना भी कराई थी। हमारे चर्च में काफी सिंधी आते हैं, और सिंधी जो आते हैं उनका एक रहता है, पास्टर हमारा बिजनेस बढ़वाओ आप कैसे भी करके, प्रेयर करके। और कई बार मुझे कहते कस के प्रार्थना करो, अच्छे से करो। कई बार मुझे भी बताते हैं उन लोग, मैं बोलता जी। अब उनके दुकान में मैं जाके प्रार्थना करके आता हूं, उनकी दुकान में जाकर प्रार्थना करके आया, पानी छिड़क दिया, बाइबल रख दी, वचन भी चिपका दिया, उनको कैलेंडर भी दे दिया मैंने। कैलेंडर देते हैं, वो बड़ा धार्मिक मानते हैं उसको, कैलेंडर टांगना, कैलेंडर भी टांग दिया वचन का। उसके बाद में बैठे, कस्टमर नहीं आ रहे, बोलते हैं आपको आना पड़ेगा एक दिन प्रार्थना करने। कहीं गया हूँ कई बार मैं उनके पास में। एक बार मैं, एक व्यक्ति बहुत निराश था, मेरा दुकान चल ही नहीं रहा है, जब से आपसे प्रार्थना करा खोली तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब मुझको भी बड़ी शर्म आ रही कि बंदे में से प्रार्थना कराना छोड़ देंगे। तो मैं गया एक दिन सुबह सुबह, वहां 2 घंटा बैठा उसके साथ में। कस्टमर आते थे पर चले जाते, उसको देख रहे हैं, बेल्ट चले गए, चश्मा देखे चले गए, पर्स देखा चले गए। मैं लौट कर गया, अपनी टीम से बात किया, अपने एसोसिएट पास्टर से मैंने कहा, पास्टर प्रबल जो मेरा एसोसिएट है, यार बंदे को जाके थोड़ा सा कोचिंग भी दो। बोले किस बात की कोचिंग देना है? बोले प्रार्थना से कुछ नहीं होना। बोला क्यों? उसका मुंह ठीक कराओ सबसे पहले। इतना मुंह उतार के खड़ा रहता है दुकान में कि मुझे तो कुछ नहीं बेचना है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। उसी एटीट्यूड के साथ में खड़ा रहता है कि मुझे कुछ भी नहीं बेचना है। वो खड़ा हुआ दुकान खोल के, बेल्ट कितने का है? 400 का। अच्छा कुछ कम हो जाएगा? लेओगे क्या? लेना है क्या? लेना है तो बात करो। वो बंदा भाग जाता है। मैंने कहा कस्टमर, ऐसा कौन बेचता है सामान? उसको पहले ऐसा सेल्समैन बनाओ कि वो गंजे को कंघी भी बेच दे। सेल्समैनशिप उसको कहते हैं, उसको सिखाओ थोड़ा। कई बार जो है हम लोग सोचते रह जाते हैं कि क्यों हमारी प्रार्थना का असर नहीं है। प्रार्थना का असर है प्रियो। आप जितनी भी दुआएं करते हैं वो खाली आसमान में गुम नहीं गई है, वो जाके जमा हो गई है परमेश्वर के पास में। आपने जितने भी दुआ यीशु के नाम से यहां पे की है वो सब रजिस्टर हो चुकी है, उसको पंच किया जा सकता है। वो जो है हार्ड डिस्क में जाके बैठ गया है। अब परमेश्वर को मालूम उसका करना क्या है। एवरी प्रेयर इज रिकॉर्डेड। आपकी हर प्रार्थना जो है लिखी गई है। करीत के नाले में बैठकर वो दुआ मांग रहा है, मुझे कहां जाना चाहिए? परमेश्वर कह रहा है तू शराफत नगर में जा, विधवा वहां पे तुझे मिलेगी और वो जो है तुझको तेरी व्यवस्था करेगी। अभी विधवा के पास में पहुंचता है अपना बैग वैग लेकर के, हेलो आंटी गुड इवनिंग, ओके आई एम हियर। कौन? एलिजा। अच्छा, मेरे को प्रभु ने सपने में कहा था तुम आने वाले हो। ठीक है, क्या? बोले थोड़ा पानी वानी। वो पानी लेने जा ही रही है, और सुनो थोड़ा सा कुछ ब्रेड व्रेड भी लेकर के आना। अब वो पलट के लौट कर आती है,
बुढ़ी ये बेचारी विधवा वैसे ही परेशान है जिंदगी से। अब कल्पना करो, ये जो वचन यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं दिखाई दे रही है 12वें पद में, ठीक है, पर यहाँ पे उसका जो है ना चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा होगा। आपके यहाँ पे जितने भी गांव में आपके बुजुर्ग महिलाएं रहती जो गुस्से में रहती हमेशा, उससे उसकी तुलना कर सकते हो। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ में बस रोटी नहीं है और केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-3 लकड़ी बीनने आई थी कि उसे पकाऊं, अपने बच्चे को खिलाऊं, खुद खाऊं और मर जाऊं। क्यों आया यहां पे? अरे है ही नहीं हमारे पास में। आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि कोई बुजुर्ग बुढ़िया है आपके गांव में, ठीक है, वो विधवा है और उसका एक बच्चा है, अभी कुछ समय पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, कितनी फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में होगी। और एलिया जैसा बंदा वहां पहुंच गया है जो बहुत डिमांडिंग है क्योंकि प्रॉफिट है, और उसी कारण से वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, परेशानी की जड़ वही है, उसने पानी रोका है और वहां जा करके कह रहा है उससे मुझे कुछ खाना खिला। अब वो नहीं कहने वाला उस लेडी से, ओ आंटी जस्ट चिल, मैं प्रॉफिट, आई एम प्रॉफिट। नो, यहां पे जेन्युइन जो कन्वर्सेशन है, वास्तविक बात है। यहां पे लिखता है तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ में बस रोटी नहीं है, केवल घड़े मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में तेल है। आप सोचो एलिया के मन में उस समय में क्या बीत रही होगी। वो सोच रहा होगा कि परमेश्वर तू मुझको मुहैया करने के लिए कहता है, पर तू मुझको ऐसे जगह में लेकर के जा रहा है जहां पे पहले से ही क्राइसिस है, पहले से ही क्राइसिस है। कितने बार आपकी जिंदगी में ऐसा मौके आए होंगे प्रियो कि आप जिस व्यक्ति से सहायता मांगने के लिए गए वही कुछ टूटा हुआ है। आप कितने बार ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंचे जहां पे आपके लिए कुछ सहायता करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल हेल्पलेस कंडीशन इज गॉड्स परफेक्ट एनवायरनमेंट। जहां पे कुछ होने की गुंजाइश और संभावना नहीं है, वही जगह परमेश्वर की सिद्ध जगह है जहां पे वो अपने चमत्कार को आरंभ करता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो चीज असंभव है वो परमेश्वर के लिए परफेक्ट ग्राउंड है, जहां पे परमेश्वर अपने काम को करेगा, परमेश्वर अपने काम को मुहैया करेगा। परमेश्वर को मालूम है कि आपके लिए क्या करना है, वो जानता है। और जब तक आप असंभव से परिस्थिति में नहीं हैं, मैं नहीं सोचता कि आप परमेश्वर की वास्तविकता को भांप भी पाएंगे। आप परमेश्वर की वास्तविकता को भांप भी पाएंगे। इम्पॉसिबल सिचुएशन is perfect ground for God to perform his miracles. आपकी असंभव परिस्थितियां बहुत होंगी इस समय में, बहुत सारी असंभव परिस्थितियां आपकी होंगी इस समय में। एलिया कह रहा उससे मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार से पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ला, और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, जब तक युवा भूमि में बेह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आपके पास जो कुछ भी इस समय में है, आप जिस भी दशा में हैं इस समय में, वो परमेश्वर का सिद्ध परफेक्ट ग्राउंड है। आप जिस भी परिस्थिति में इस समय में हैं प्रियो, चाहे आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, चाहे आप बेरोजगार हो इस समय में, चाहे आपके पास में छोटी नौकरी हो इस समय में, चाहे हो सकता है शायद कि आपके पास में उतनी जमीनें ना हो सकता है कि आपके माता पिता बुजुर्ग हो गए और बीमारी के बिस्तर में लेटे हुए हों इस समय में, हो सकता है कि आपके रिश्ते टूट गए हों, हो सकता है संबंध विच्छेद हो गया हो सकता है शायद कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा हो, आपके कंपटीशन में आप बार बार फेल हो रहे हों। पूरी संभावना है कि आप एक ऐसे माहौल में हैं, एक ऐसे मौसम में हैं जहां पे कुछ ज्यादा संभावना नजर नहीं आती है, और वही जगह है परमेश्वर जहां पे अपने चमत्कारों को कर सकता है। आमीन। यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु का वचन जब एलिया को पहुंचता है, एलिया उस स्त्री से कहता है कि तू जा, सबसे पहले मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर के आ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वचन में लिखा हुआ है, आगे चल करके यहाँ पे बात आती है, तब वह चली गई, एलिया के वचन के अनुसार वैसे किया, और उस स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। उस स्त्री का घराना बहुत दिन तक खाते रहे। वचन में लिखा हुआ है कि वो एलिया ने उसे कहा था, जब तू ऐसा करेगी तो तेरे घर के घड़े का आटा कभी कम नहीं पड़ेगा और तेरे कुप्पी का तेल कभी भी कम नहीं होगा। परमेश्वर के लिए देना बेहद जरूरी है प्रियो। मुझको मालूम नहीं कि आप लोग किस तरह से देते हैं। आज जो पैसे हैं सबसे ज्यादा नौजवानों के पास में हैं,
पर उनको पता नहीं उन पैसों को क्या करना है। जो मिलेनियल किड्स कहते हैं, जिनका जन्म जो है 1999 से लेकर आरंभ हुआ है या जो है 1991 से चालू, उनको मिलेनियल किड्स कहा गया है। उनको पता नहीं उनको पैसे को क्या करना है। समटाइम्स दे स्पेंड ऑन देमसेल्व्स। वे परमेश्वर को देना नहीं मांगते हैं, वे प्रभु को देना नहीं मांगते हैं। उनको मेरे पैसे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो कपड़े खरीद रहे हैं, वो कपड़े खरीदते हैं। बिशप सर, लोग काफी कपड़े खरीदते हैं, नौजवान बहुत कपड़े खरीदते हैं, जूते खूब खरीदते हैं, और कपड़े भी ऐसे ऐसे खरीदते हैं जिसको देख करके लगता नहीं है कि इन्होंने कपड़े खरीदा है, ऐसा लगता है कहीं से उठाया है इसको। मेरी बेटी की शादी हो गई। मेरा जो सन इन लॉ है वो अमेरिकन है, फॉरेनर है, दोनों साथ पढ़ते थे, शादी हो गई उनकी। एक दिन उसने मुझे फोटो भेजी अपनी, दोनों किसी जो है शॉपिंग सेंटर में है, और दोनों खड़े होकर उन्होंने फोटो भेजा। जैसे फोटो को देखा मेरा हार्ट अटैक हो गया देख करके। ठीक है, तुरंत मैंने अपने बेटे को फोन किया। मैंने बोला, बच्चे क्या है? बोले, डैड मैं और कायल हम दोनों जो है शॉपिंग के लिए आए थे, सो आई बॉट दिस न्यू जींस पैंट, वो मैंने आपको पहन के मैंने फोटो भेजी है। मैंने, तुमने इसे खरीदा? बोले हाँ। अरे मैं तो चारों तरफ से फटा हुआ है ये तो। मतलब मुझको बड़ा चिंता हो गया कि ये बंदा जिससे तेरी शादी हो तेरी देखभाल करता है कि नहीं करता है, तेरे को फटे कपड़े पहना रहा है। वो कहने लगे, डैड यार आप मजाक कर रहे हो? मतलब सच में? वो कहने लगे, डैड जस्ट कूल। क्या? दिस इज कॉल्ड रिप्ड जींस। अब बहुत महंगा ये। कितने का है? 13,000 रुपए का। आई से 13,000 रुपए का? हमारे यहाँ तो इसी बर्तन के में लोग बदलते हैं, बर्तन को वाले को देते हैं कपड़े, और बर्तन देता है, उसके पास खूब मिल जाते हैं ऐसे। कई बार हम लोग जो है गरीब नहीं है, गरीब हम लोग दिखाना मांगते हैं, और जो कपड़े खरीदते हैं उससे हम लोग गरीब हमेशा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत महंगा आता है वो फटे कपड़ा। रिप्ड जींस, रिप्ड जींस। गिव योर टाइम्स एंड ऑफरिंग इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आप अपने पैसे प्रभु के भवन में चढ़ाइए। जब भी चर्च में आते हैं, जब भी प्रभु के दरबार में आते हैं, अपनी ऑफरिंग लेकर के आइए। नौजवानों, जब आप देना शुरू करोगे आपकी इकोनॉमी बदलेगी। यह परमेश्वर का नियम है। एलिया जब कहता है उस विधवा से कि जब तू प्रभु की दास को खिलाएगी तो ना तो तेरे घड़े का आटा ना तेरे कुप्पी का तेल घटेगा। और ये वास्तविकता है प्रभु के वचन के अनुसार से। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप दीजिए, आप दीजिए प्रभु को आप दीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी इनकम कमाई, तनख्वाह लेकर के घर में आया और अलमारी के अंदर लॉकर में बंद कर दिया, और रात के समय में उस अलमारी के अंदर में गदर मच गया। जो 500 के नोट थे उछलने लगे और कहने लगे, हम तो कल शॉपिंग के लिए जाएंगे, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, हम कपड़े की दुकान में जाएंगे, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में जाएंगे। तो जो 100 के नोट थे वो भी उछलने लगे। हम भी बाजार जाएंगे, हम भी बाजार जाएंगे, हम किराने की दुकान में जाएंगे, हम सब्जियों की दुकान में जाएंगे। 50 के नोट भी उछलने लगे, हम गोलगप्पे की दुकान में जाएंगे। 10-20 के नोट उछलने लगे, वो भी कहने लगे हम चाय की दुकान में जाएंगे। अचानक देखा कि चिल्लर भी उछलने लगे खूब जोर जोर से। और चिल्लर जब उछल रहे थे खूब शोर होने लगा। चिल्लर थे ना, चिल्लर खूब शोर करते हैं, चिल्लर खूब उछल रहे हैं। ये जो है 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 खूब उछल रहे हैं जोर जोर से। तो सब आश्चर्यचकित हो गए सारे पैसे। कहने लगे, भाई ये क्या बात हुई? तुम कितने इतना हल्ला मचा रहे हो? क्या कारण है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो तुम? किधर जा रहे हो तुम? तुमको तो कोई ले जाता नहीं कहीं। और बोलता है ये संडे आने तो हम सब चर्च जाएंगे। जो नोट बाजारों में चलते नहीं उन्हें चर्च में मत डालिए। जो नोट रिजेक्ट हो गए हैं, ले ही नहीं रहा कोई, उसे चर्च में मत डालो। गिव टू द लॉर्ड फ्रेश एंड न्यू। आप बेहतरीन प्रभु को दीजिए। रिस्पेक्ट गॉड फ्रेंड्स, एंड रिस्पेक्ट हिम बाय गिविंग। आप देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमेशा प्रभु को दो। नौजवानों, आपने जब देना परमेश्वर को शुरू कर दिया, मैं कहता हूं कि आपका जो है प्रगति कोई रोक नहीं सकता है।
आपके प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता है। आपका अगर तनख्वाह जो है 10,000 रुपए है, 1,000 प्रभु को लाके चढ़ाओ, उसके बाद में भी ऑफरिंग डालो। आपको इधर उधर दुनिया में भेजने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या है बिशप सर? ठीक है, और लोग जो हैं, कलीसिया मेहनत करती है, पासबान मेहनत करता है, फेडरेशन के लोग आपकी देखभाल चिंता करते हैं, और आप जो है अपनी सफलता का श्रेय जो देते हैं गॉड चैनल को, वो सारा पैसा उठा के गॉड चैनल को भेज दिया, सारा पैसा उठा के जीएस कॉल्स को भेज दिया, सारा पैसा उठा के किसी प्रभु के दास को भेज दिया। और कई लोग तो आजकल पंजाब भेज रहे हैं, आजकल बोलते हैं वहाँ 21,000 में भेज दो, वो प्रार्थना करेगा, हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। आपका काम कलीसिया के भीतर में होगा। वचन को के अनुसार से परमेश्वर ने कलीसिया को शक्ति दी है। आपका पासवान चाहे कैसा भी दिखता क्यों ना रहे, चाहे बड़े, आपको लगता है पासर बहुत ढीला है, आपके जैसा वचन नहीं बोलता है, बहुत ढीला है, कोई बात नहीं, उसके प्रार्थना में ताकत है, क्योंकि प्रभु का अभिषिक्त है। वो सिर के ऊपर हाथ रख के आप प्रार्थना कराइए, आपका काम होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। गिव टू द लॉर्ड। आप इधर उधर सारी दुनिया में पैसे मत बांटिए, आप परमेश्वर के भवन के अंदर में चढ़ाइए। वचन में लिखा हुआ है मलाकी किताब में उसके 3:15 में, सारे दशमांश बड़े भंडार में ले आओ, ताकि यहां पे किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना रहे। आप प्रभु के भवन के अंदर में अपनी भेंटों को चढ़ाइए। मेक योर चर्च रिच चर्च। आप अपनी कलीसिया को जो है एक धनी कलीसिया बनाइए। आप अपनी कलीसिया को धनी कलीसिया बनाइए। जब मैंने अपने तायत के देने की शुरुआत की थी, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग 150 रुपए दिया करते थे। हम लोग विश्वास योग्य थे। और 1 साल के बाद में हम लोग 600 रुपए देना शुरू कर दिए। उसके 2 साल के बाद में हम लोग 1400 रुपए देते थे तायत। और उसके बाद मैं पास्टर हूं कलीसिया का, पर मेरे लिए नियम है, लागू है कि मैं लायबिलिटी नहीं हूं अपनी कलीसिया के लिए, मैं असेट हूं। आई एम नॉट अ लायबिलिटी टू माई चर्च। मैं अपनी कलीसिया के लिए संपत्ति हूं, धरोहर हूं। और हमारे चर्च में हमने सभी पासवानों को सिखा रखा है, कोई भी जो है यहां पे से लेगा नहीं, चर्च को देगा। सब हम लोग चर्च को देते हैं अपने। वी हैव अ ब्यूटीफुल चर्च, बट वी आर द गिवर्स। तो जब जो है हमारी जो है 1400 रुपए हुई, उसके बाद में उन्होंने 3000 रुपए देना शुरू किया। कुछ वर्ष के बाद में वो 7000 रुपए हो गया। आज की डेट में जो है हम लोग का जो पूरा परिवार है, हम लोग की जो ताइथ और ऑफरिंग है वो बढ़ चुकी है काफी प्रियो। और हम लोग जो है करीब 30,000 रुपए की ताइथ हमारी निकलती है। पर हमने शुरुआत कब की थी? जब 150 रुपए था। पास्टर एक बार मेरे को दे तो दे प्रभु, मैं जिस दिन तनख्वाह हो जाएगी ना 30,000 रुपए, तो 3,000 खड़ाक से मैं चढ़ाऊंगा। अरे बाबा अभी 3,000 रुपए है, 300 चढ़ाओ। वो खटाक से नहीं होने वाला। एक बार मिलेगा तो देखो ना, एक बार मेरे को प्रभु आशीष दे दे, देखना फिर मैं कैसे देता हूं। कुछ नहीं देना, आदत ही नहीं है। वचन में क्या लिखा हुआ है? जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है, वो बड़े में भी विश्वास योग्य ठहराया जाएगा। लर्न टू गिव। यहां पे एलिया उससे कह रहा है, सबसे पहले तू मुझे दे। और यहां पे वचन में लिखा हुआ है, ना कुप्पी का तेल घटा, ना ही घड़े का आटा घटा। वो हफ्तों खाते रहे, अब बेहतरीन उनकी जिंदगी बीतती रही, बेहतरीन उनकी जिंदगी बीतती रही। यहां लिखा हुआ है कि एक दिन आया, उस घर का बेटा जो है बीमार पड़ गया, उसको रोग हो गया, उसने सांस लेना बंद कर दिया, उसने सांस लेना बंद कर दिया, उसको रोग हो गया था। अब वचन में लिखा हुआ है कि वो मर गया, मर गया। 18 पद। अब फिर से जो यहाँ पे जो ये बुढ़िया बड़ी खूसट टाइप की थी, यहां पे दिखाई दे रहा है फिर से 18 पद। आइए मिलके पढ़ें। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे घर में आया था कि मेरी बेटी की मृत्यु का कारण हो, अब मेरे पाप का स्मरण दिलाए? क्या तू इसीलिए आया है कि मेरा बेटा मर जाए? अच्छा, पहले जो था कुछ हफ्ते पहले, वो कह रही थी हम तो ये आखिरी रोटी है पादरी साहब, ये आखिरी है, क्या करें, हमारे पास इतना ही है, हम भी खाएंगे, मेरा बेटा खाएगा, हम मर जाएंगे, ये लास्ट भोजन है। अब जब उसको मिल गया, यहां तक जो खाना पीने लग गई, बढ़िया जिंदगी चल रही है, अचानक उसका बेटा मर गया। कहते क्या तू इसीलिए आया था कि मेरा बेटा मर जाए? जस्ट इमेजिन, हम लोग कई बार जो है प्रभु को दोष देते हैं यूं ही, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। जब तक सब बढ़िया चल रहा तब तक तो ठीक है, जैसे कुछ हो जाता है, अरे पता नहीं परमेश्वर कौन सा जन्म का बदला ले रहा है, पता नहीं ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है, पॉटर जी प्रार्थना करो मेरे लिए, पॉटर जी मेरे लिए दुआ मांगो। हमारे यहाँ पे बार बार लोग कहते हैं हमसे, हमारे लिए भी जरूर जरूर प्रार्थना करो, पता नहीं क्या हो गया है, किस कर्म की सजा दे रही है, किस जन्म की सजा दे रहा है प्रभु। और यहाँ पे ये भी जो है माता राम कह रही है, पता नहीं क्या हो गया है, तू क्या इसीलिए आया था कि मेरे बेटे को मार डाले? समटाइम्स
थिंग्स विल गो रॉन्ग इवन व्हेन यू आर इन द फेथ। कई बार आप जब विश्वास में हैं, चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। हो सकता है यूसुफ के साथ में हुआ, वो 13 साल तक दुख पाता रहा। दाऊद के साथ हुआ, वो 10 साल तक दुख पाता रहा। आप और मैं, हमारे साथ भी कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। इट्स ऑल राइट। आपको जो चीज छोड़ना है वो है स्वयं पर भरोसा। आपको जो पकड़े रहना है वो परमेश्वर पर विश्वास। यूसुफ परमेश्वर के विश्वास को पकड़े रहा और वचन बताता है कि उन कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर उसके संग था। आप और मैं प्रियो, हम लोग जिस बात को ढूंढ रहे हैं वो परमेश्वर को हम लोग ढूंढे, परमेश्वर को हम लोग ढूंढे और उसे पकड़े रहें। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही वो देखता है कि बच्चे का सांस लेना बंद हो गया, वो मर गया है, अब उसको लेकर के एलिया जो है भाग रहा है अटारी में और वहां जाकर उसको लिटा दिया अपने बिस्तर में, और वहां पे जो है उसके ऊपर पसर गया और उसने जो है प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। हम लोग दुआ मांगना शुरू करें। हमारी परिस्थितियां बिगड़ेंगी, दुआ मांगना शुरू करें। आप जो नौजवान भाई बहन बैठे हुए हैं, बेटे बेटियां बैठी हुई हैं, आपको जानना जरूरी है कि आप और मैं, हमारे दुआओं में ताकत है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रे। जब भी कभी परिस्थिति बिगड़ती है, आपका पहला प्रतिक्रिया, पहला रिएक्शन आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। जैसे ही आपकी जिंदगी में चीजें कुछ बिगड़ती हैं, पहला आपका जो है दिशा परमेश्वर होना चाहिए और कुछ नहीं। बहुत से बार जो है हम लोग जो हैं उनको पुकारते हैं जो कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम लोग किसको पुकार रहे हैं? मामा को, किसको पुकार रहे हैं? चाचा को, किसको पुकार रहे हैं? फूफा को, किसको पुकार रहे हैं? मौसी को। हम लोग सोचते हैं शायद कि हमारे रिश्तेदार हमारे लिए कारागर होंगे। आपकी परिस्थिति में जो सबसे ज्यादा सहज से मिलने वाला जो सहायक है वो आपका परमेश्वर यहोवा है। आप उसको पुकारिए, आप उसको मांगिए और वो आपको सुन करके उत्तर देगा। और वो जो है परमेश्वर का दास उसके ऊपर में पसर गया और कहा, परमेश्वर इस बच्चे का प्राण इसमें फिर से डाल दे। और वचन में लिखा हुआ है, एलिया की बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और फिर से वह जी उठा, फिर से वह जी उठा। इसके पहले कि वो कर्मेल पर्वत के ऊपर में जाकर बाल के पुजारियों से मुलाकात करे, इसके पहले कि वो आसमान से जो है आग को जमीन पे बरसाए, इसके पहले कि वो परमेश्वर की महिमा को जो है पूरे इज़राइल में फैलाए, अकेला एलिया जब हजारों की भीड़ के सामने में खड़ा होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस इस समय में जारी है। करीत के नाले में कौओं के द्वारा मुहैया करना, दुआओं को सुनकर परमेश्वर द्वारा उसे रोटी और तेल देना और बच्चे का प्राण जो है फिर से लेकर के आना, उसे तैयार कर रहा है। इट्स अ प्रिपरेशन फॉर द बिग कन्फ्रंटेशन। इसके पहले कि महायुद्ध हो, उसके पहले एलिया की तैयारी थी। आपकी क्या तैयारी है प्रियो? आप चाहते कि आपकी जिंदगी में चीजें बड़ी हो, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में सब बेहतरीन हो, पर आपने क्या तैयारियां की हैं? हैव यू एक्सपीरियंस गॉड एवरी डे? क्या आपने छोटी छोटी परिस्थितियों में परमेश्वर को आपने ढूंढा है? क्या परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हैं? आप अपने अवसरों में, अपने परिस्थितियों में, अपने माहौल में, अपनी समस्याओं में आप परमेश्वर क्या आपने न्योता दिया है? क्या आपने उसे बुलाया है कि परमेश्वर तू आ जा और चीजों को तू बदलना शुरू कर दे? एलिया के बारे में लिखा हुआ है कि एलिया ने परमेश्वर को पुकारा था। आप और मैं जब हम लोग आराधना करते हैं प्रियो, आपको जानना जरूरी है, हमारी आराधना का जो केंद्र बिंदु है, हमारी प्राप्ति हमारे मांगे नहीं है, हमारा परमेश्वर है। एलिया इस बात को समझ गया था कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं वो बार बार मेरे लिए मुहैया करेगा, कौओं को भेजेगा, विधवा को भेजेगा, बच्चे में जान फूकेगा। उसको मालूम था, उसका जो दृष्टिकोण था परमेश्वर के प्रति था। परमेश्वर ने बार बार जब उसको जो है दिया, वो विषम परिस्थिति में उसने दिया। हम लोग पढ़ते बाइबल में कि एलिया जब प्रभु लेकर के जा रहा है तो नाले में ले जा रहा है, नदी नहीं लेके गया, झील में लेकर के नहीं गया, किसी कुएं के पास में नहीं ले गया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये जो नाला है, ये जो ब्रुक है,
ये जो धारा बह के निकली है थोड़े समय के बाद में सूख जाएगी। संभव है नदी ना सूखे, संभव है कुएं ना सूखे, संभव है झील ना सूखे, पर ये जो बुरुक या ये जो नाला है ये जरूर सूखेगा। परमेश्वर इसलिए इसको वहां पे लेकर के जाता है। आपको और मुझे जाना जरूरी है प्रियो कि आप और मैं परमेश्वर की तरफ जब देखना शुरू करते हैं हमारे लिए असंभव परिस्थिति संभव होने लग जाती है। वी बिगिन टू एंजॉय द लाइफ इन गॉड्स प्रेजेंस। आइए अपने स्थान में हम लोग खड़े हो जाएंगे। विल मेक फ्यू कमिटमेंट्स। मैं आपके सामने में कुछ जो है लेसन्स छोड़ना चाहता हूं। आइए अपने स्थान खड़े हो जाएं। आपकी जिंदगी की सर्वोत्तम खुशियां आपके पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए। आपकी जिंदगी की सर्वोत्तम खुशियां आपके पास क्या है उस पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आपके पास में क्या है, मुद्दा यह नहीं है प्रियो, मुद्दा यह नहीं है। आपके पास में क्या है। कुछ वर्ष पहले जोधपुर में आपके राज्य की नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी है, जो भारत देश के सबसे धनी लोग हैं, उसका जन्मदिन मनाया गया था। और उसके जन्मदिन में करीब करीब 300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 2 दिन में। जन्मदिन में 300 करोड़ 2 दिन में। और मैं शेयर कर रहा था अपने दोस्तों के साथ में, 2 दिन में नीता अंबानी ने अपने जन्मदिन में 300 करोड़ रुपए खर्च किए। 300 करोड़ रुपए, जिसके बारे में आप और मैं नहीं सोच सकते। हम लोग पता नहीं कितना शून्य लगता है 300 करोड़ में। दुर्भाग्य क्या है पता है? उसकी ये चकाचौंध, उसकी ये सारी चीजें, उसके सारे सेलिब्रेशन यादों के रूप में दुनिया में रह जाएंगे, उनके एल्बम और वीडियोस में रह जाएंगे, जाएगा कुछ नहीं। आप में शायद कई लोग अपना बर्थडे भी नहीं मनाते होंगे। कोई बात नहीं, आपका जो सच्ची खुशी है वो आपके भरपूरी में नहीं है, नई पोजीशन में है कि क्या क्या चीज आपके पास है। कितना बेहतरीन मोबाइल फोन है, कितनी बेहतरीन बाइक है, कितनी बेहतरीन कार आप चलाते हैं, या कितने अच्छे घर में आप रहते हैं, वो खुशी का कारण नहीं है। खुशी का कारण मुहैया करने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर जो हर समय आपको देगा। नंबर 2, धार्मिकता की खोज समय की मांग है। सर्च फॉर द राइचियसनेस। धार्मिकता खोज समय की मांग है। और आप इस विकेड या इस दुष्ट करप्ट संसार में, जहां पे करप्शन या दुष्टता हावी है, वहां पे परमेश्वर की चिराग, उसकी रोशनी बन करके आप रह सकते हैं। 100 दुष्टों के बीच में आप परमेश्वर की रोशनी की एक अकेले मीनार हो सकते हैं। आप उनके जैसा बनने के बजाय आप परमेश्वर के राजदूत बन के अकेले खड़े रहिए। नंबर 3, आप मोहब्बत यदि करते हैं परमेश्वर से, उसके अंदर में असंतुष्टि की कोई भी जगह नहीं है। तू मुझे क्या दे रहा है, बात यह नहीं है प्रियो, तू मुझे क्या दे रहा है। बात इस बात की है कि वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में है। आप थोड़ा धन कमाते हैं, छोटी जिंदगी जीते हैं, पर वो बेहतर है उनसे जो बड़े शहरों में रहते हैं, जो घूस लेते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो दूसरों की प्रॉपर्टी में कब्जा करते हैं, जो बैंकों से लोन लेकर के लौटाते नहीं हैं, जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके जो है निकल जाते, अपनी जगह बदल लेते हैं। अपराध करके चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया है, परंतु आपने छोटी इनकम में
संतुष्टि के साथ आप अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उसमें ईमानदारी है, परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है। पहला तीमुथियुस किताब 6 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, संतुष्टि के साथ धार्मिकता का जीवन बिताना सबसे अच्छी बात है। संतुष्टि का जीवन। आप असंतुष्ट कई चीजों से हो सकते हैं, बहुत चीजों से आप असंतुष्ट हो सकते हैं। अपने आसपास आप देखिए, बहुत असंतुष्ट और दुखी हो सकते हैं। पर मैं सोचता हूं कि आप और मैं, हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसको बिताना शुरू करें। भौतिकता आएगी और जाएगी, भौतिकता आएगी और जाएगी। ये आधुनिक युग है, ये पल पल बदलता चला जाएगा। पर आपने और मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट होकर जीना शुरू कर दिया है। हम उसके भविष्यवक्ता बनकर खड़े रहेंगे। एलिया परमेश्वर के उपस्थिति करीब में उसने पाया था, और शायद हो सकता है शायद कि वहां पे अपनी जिंदगी आराम से बिताता, लेविश लाइफ। हो सकता है परमेश्वर उसको एक समुद्र किनारे भेजता, लेविश लाइफ। हो सकता है कि वो नदी किनारे पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी जिंदगी बिताता हुआ। परमेश्वर ने उसे एक जगह में रखा जहां पे थोड़े समय का सुख था। उसको एक विधवा घर में लेके जाता है, शराफत में। वो किसी सेठ के यहाँ नहीं भेजता, किसी एक मकान मालिक के घर नहीं भेजता, उसको किसी व्यापारी के घर नहीं भेजता है, उसे किसी संपन्न अधिकारी के घर नहीं भेजता है। शराफत में कहता है, तू जाके विधवा के घर में टिक, और उस घर में चमत्कारों को तू देख, क्योंकि मंजिल अभी दूर है। तेरी जिंदगी का क्लाइमेक्स अभी होने वाला है, और वो है करमेल पर्वत में तेरा बाल देवता की पुजारी सामना करना। आपका करमेल पर्वत कहां है? क्या आप वहां पहुंच गए हैं, या आपको उसकी जानकारी नहीं है? ये समय है प्रियो। आइए अपने हाथों को स्वर्ग तरफ में उठाएं, प्रभु से कहना शुरू करें। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मेरा जो उद्देश्य है अभी पूरा हुआ नहीं है। मेरा उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ है। मैं भी करमेल पर्वत पर नहीं पहुंचा हूं। मेरी मंजिल अभी दूर है। मुझे करीत नाले का अनुभव दे, मुझे शराफत नगर का अनुभव दे, मुझे बच्चे को जिंदा करने का अनुभव दे। परमेश्वर के पास आपके लिए महान योजना है प्रियो। प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें इस समय में हम लोग, जीसस ने। हालेलुया लॉर्ड जीसस। मैं चाहूंगा क्वायर सामने आ जाए, हम लोग उस गीत को लेंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आइए उस गीत को हम लोग लें इस समय में। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हम लोग आराधना करेंगे। आइए हम लोग आराधना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु का वचन हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में इस समय में है प्रियो। आइए मांगे उसको। हालेलुया लॉर्ड जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने। आइए प्रार्थना करते हैं। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, आप प्रभु से मांगते रहें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु आपको छुए इस समय में। हम लोग जानते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमें आराधना करने बुलाया है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया लॉर्ड जीसस ने, जीसस ने, लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। ये हमारा विश्वास है। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। आइए इस गीत पर विश्वास करें। यीशु मसीह भरोसा
सहारा है मेरा, वो सहारा है हमारा। मुश्किल समय में तू है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। वो साथ रहता है। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, उसकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम जब उसकी आराधना कर रहे हैं प्रियो, प्रभु से कहें, प्रभु मैं जानता हूं जहां के भी मैं हूं, वो मेरा करीत है, वो मेरा शरापत है। Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Sharabaturi karabara barabatini karabara bara. Oh, sharaturi karabara bara barabatini karabara. Jesus name. आइए एक बार फिर से इस गीत को गाएं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए। Oh Lord Jesus name. मुश्किल समय में वो साथ हमारे रहेगा। Jesus name. मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए दिल से गाएं उसके नाम को। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके नौजवान बेटे बेटियों के लिए जो अपने हाथों को उठाकर आपसे कहते हैं, प्रभु आपका नाम ऊंचा रहे। मैं प्रार्थना करता हूं जो अभिषेक आपने एलिया को दिया था,
इन अपने नौजवान बेटे बेटियों को एलिया का अभिषेक दें खुदावंद। इन बेटे बेटियों को अपना रूह दें प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से भर के रखें प्रभु जी। जब इनके जिंदगी के करमेल पर्वत की ओर आप लेकर के जाते हैं परमेश्वर पिता, आप इन्हें प्रतिदिन तैयार करें, नए रूप से तैयार करें, सामर्थ से भर के रखें, अभिषेक से भर के रखें प्रभु जी। और आप पे भरोसा करते हुए, आप पर इत्मीनान करते हुए, आप पर एतबार करते हुए ये निरंतर आगे बढ़ने पाए। और ऐसा हो परमेश्वर पिता, आपके महिमा के राज्य के लिए ये इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि दुआ मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूं। सभी कहें आमीन आमीन आमीन। आइए अपने सर